جی بیٹا فلپیو کے نام پر اس رسول کا خط اس کا 2 باب اس کی 5 آیت ہم پڑھیں گے، صرف ایک ہی آیت پڑھیں گے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ شکریہ آپ کا، کھڑے ہوئے۔ جی ہم نے آج کی جو آیت ہے وہ ہم نے کیا پڑھا ہے جی؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب اپنا اپنا جو ہے فیڈ بیک دیں گے کہ یسوع مسیح کا مزاج کس طرح کا تھا؟ حلیم اور معاف کرنے والا۔ حلیم اور معاف کرنے والا۔ اور کوئی بتائے؟ رحم اور حلیم، محبت کرنے والا۔ محبت کرنے والا۔ تنزیلہ کے علاوہ بھی کوئی بتائے؟ جی اور کوئی؟ برکت دینے والا۔ اور باقی کسی کو نہیں پتا کہ یسوع مسیح کا مزاج کس طرح کا تھا؟ فدیہ دینے والا۔ یا آپ نے نکل ماری ہے۔ جی اینڈر صاحب، یسوع مسیح کا مزاج کس طرح کا تھا؟ غصے میں بھی رہتے تھے۔ اچھا غصے میں بھی رہتے تھے، کس کے خلاف؟ گناہ کے خلاف۔ جی اور کوئی بتائے گا جی یسوع مسیح کا مزاج کس طرح کا تھا؟ پولس رسول کہتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو۔ ارے بھائی آپ کا مزاج نہیں ہے جیسا، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ جی کوئی اور بتائے گا؟ اچھا ماما، آپ ماما کو پوچھو تو آپ کی ماما خود ہی بتا رہے، میں پوچھوں گا پھر بتائے گا۔ جی آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا مزاج کہہ رہے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پولس رسول جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ سیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر یسوع مسیح کا جو مزاج تھا وہ کس طرح کا تھا۔ آمین۔ آئے ہم دیکھتے ہیں، ہم پہلی جو بات ہے وہ پڑھیں گے، اس کی جو اگلی آیت ہے وہ بھی پڑھنے میں رہنمائی کریں گے۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ آمین۔ پہلا جو مزاج تھا وہ یسوع مسیح کا وہ کیا تھا جی؟ خدا کی صورت پر۔ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر آگے کیا لکھا ہے جی؟ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ نہ سمجھا۔ پہلا جو مزاج ہے وہ یسوع مسیح کا، آپ نے دیکھ لیا کہ یسوع مسیح کا جو پہلا مزاج ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر تھا اور اپنے آپ کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ خادم کی صورت اختیار کی۔ خادم کی صورت اختیار کر لی۔ جو یسوع مسیح کا، میرے اور آپ کے یسوع مسیح کا جو مزاج تھا وہ کس طرح کا تھا؟ اس نے خادم کی صورت اختیار کر لی اور آگے اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ ہم ایک حوالہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یعقوب کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 4 آیت ہم پڑھیں گے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ نمبر 2 پر جو یسوع مسیح کا مزاج ہے وہ کس طرح کا ہے؟ جی بیٹا 4:4 جی۔ اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ جی بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ آمین۔ ہم نے یہاں سے بھی سیکھا ہے کہ اگر میں اور آپ دنیا کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو ہم کس کو دشمن بنا رہے ہیں؟ کس کو؟ ہم خدا کو دشمن بنا رہے ہیں، کیونکہ اگر میں اور آپ اگر یسوع مسیح کے مزاج کو دیکھ رہے ہیں تو یسوع مسیح کا مزاج جو ہے اس نے دنیا سے دوستی نہیں رکھی، اس نے خدا باپ کے ساتھ دوستی رکھی ہے
और मुझे और आपको भी पौलुस रसूल ये बात बता रहे हैं कि अगर आपने यीशु मसीह जैसा मिजाज रखना है तो आपको दुनिया से दुश्मनी करनी पड़ेगी और खुदा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। हमें दुनिया से दुश्मनी करनी पड़ेगी, फिर हमारा, मेरा और आपका मिजाज यीशु जैसा होगा। जो बात पौलुस रसूल ने कही है वो तब ही पूरी होगी जब मैं और आप दुनिया से दोस्ती नहीं करेंगे या ना रखेंगे। आमीन। आगे हम दुनिया से दोस्ती करते हैं तो हमारी जो बरकत है, जो खिदमत हमें दी है, बरकत हमारी सरफराजी, इकबाल मंदी और तरक्की में रुकावट की वजह हर तरह का लालच है। अगर हम दुनिया से दोस्ती करते हैं तो हम दुआ नहीं कर सकते। हम दुनिया से दोस्ती करेंगे तो हम रोजे के अंदर नहीं ठहर सकते। अगर हम दुनिया से दोस्ती रखेंगे तो हमारा राब्ता खुदा के साथ नहीं होगा। कभी भी हम जब किसी के लिए दुआ करेंगे या कोई भी हमें दुआ के लिए कहेगा तो खुदा हमें गाइड करेगा कि तूने इसके लिए दुआ करनी है या कि नहीं, ये बंदा किस तरह का है। जब मैं और आप दुनिया से दुश्मनी रखेंगे तो मैं और आप क्या करेंगे जी? अब मैं और आप तरक्की करेंगे और आप और मैं लालच, जो बुत परस्ती के बराबर है, कलाम के अंदर लिखा है कि लालच बुत परस्ती के बराबर है, मैं और आप फिर इस लालच से जो है वो बचे रहेंगे। आमीन। आगे हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, नंबर 4 पर जो यीशु मसीह का मिजाज है हम उस पर बात करेंगे। नंबर 4 पर जो यीशु मसीह का मिजाज है वो किस तरह था। उसने अपने आप को पस्त कर दिया, खाकसार हो गया, सबसे छोटा बना लिया, बड़ापन खत्म कर दिया, सबसे हलीम बन गया। मूसा के बाद यीशु सबसे ज्यादा, मूसा के बाद यीशु सबसे ज्यादा हलीम था। अगर मैंने और आपने यीशु मसीह जैसा मिजाज रखना है तो हमें हलीम बनना पड़ेगा। हलीम लोग किस तरह के होते हैं? चीज को बर्दाश्त करने का लचक होती है उनमें लचक होती है। अगर किसी ने बात सहने का ज्यादा स्टैमिना होता है, जैसे बर्दाश्त करने का। पहला ग्रंथियों उसके पौलुस रसूल के नाम, पहला ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का घर 13 बाब उसकी पहले कुछ आयतें पढ़े तो उसके अंदर लिखा है कि मोहब्बत है वो सब कुछ सह लेती है और सब चीजों की उम्मीद रखती है और बर्दाश्त करती है। अगर आप हलीम हैं तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपने यीशु मसीह जैसा मिजाज रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? हलीम बनना पड़ेगा, फरोतन बनना पड़ेगा। फिर मैं और आप कह सकते हैं पौलुस रसूल की तरह कि मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद। उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ काफी चीजें उसकी जो है वो मिलती थी, इसलिए कहा था। इसलिए मैं और आप भी कह सकते हैं। आगे हम खुदा के कलाम में से देखेंगे नंबर 5 पर जो मिजाज है, फर्माबरदार रहा, अपने को अपनी मर्जी पूरी करने में वो जान देने तक वफादार रहा। इसलिए लिखा है कि मुकाशवा में, मैं कहता हूँ हवाला पढ़ दे, 2 बाब मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब उसकी 10 नंबर जो है हम आयत पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दुख तुझे सहने होंगे, उनसे खौफ न कर। देखो अब्लीस तुम में से बांस को कैद में डालने को है जी, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो जी, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी
आमीन। खुदा के कलाम के अंदर पढ़ा है हमने कि जान देने तक वफादार रहे। हम पर बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, यहां तक जो लिखा हुआ है कि हमें जान भी देनी पड़ेगी। अगर मैं और आप यहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं कि जान देने तक वफादार रहेंगे, तो फिर मेरा और आपका मिजाज यीशु मसीह जैसा होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी क्या की जी? अपनी जान दे दी। इसलिए मैंने और आपने अपनी जान देने तक वफादार रहना है, तो फिर हमें जिंदगी का ताज मिलेगा, हमें जिंदगी मिलेगी हमेशा की। आगे हम पौलुस रसूल की बातों को कुछ सीखते हैं कि पौलुस रसूल इस बात का दावा कर रहे हैं कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। या वो बात करते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं पहला करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11 बाब, उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। पौलुस रसूल क्या कहते हैं? हमारे प्यारे भाई पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं यीशु मसीह के बारे में? तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। आमीन। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मेरी मानद बनो जैसा, बोले ना, जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। पौलुस रसूल कहते हैं ये दावा किसी ने नहीं किया सिवाय पौलुस से। सबसे बड़ा मिजाज यही है कि हम मसीह की मानद बन जाए। सबसे जो बड़ा मिजाज है वो आपका क्या है जी? हम मसीह की मानद बन जाए। सबसे जो बड़ा मिजाज है वो ये है। नंबर 2 पर जो बात खुदा के बंदा ने की है, यीशु ने कहा कि इससे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्त के लिए दे दे। पौलुस कहता है कि कौन मुझको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। और पौलुस रसूल इस बात को का बयान कर रहे हैं। हम हवाला पढ़ लेंगे, उसके साथ ही हम बात करेंगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8 बाब, उसकी 35 आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? जी, मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। जी, चनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। जी, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। आमीन, आमीन। आगे यीशु मसीह के बारे में मिलता है कि उन्होंने शादी नहीं की। तो पौलुस रसूल की जो बात है वो भी हमें मिलता है कि उसने भी शादी नहीं की थी। इसलिए पौलुस रसूल का जो मिजाज है वो यीशु मसीह के साथ मिलता है। आमीन। यीशु ने बाप की मर्जी को पूरा किया। यीशु मसीह ने क्या किया जी? और पौलुस रसूल ने यीशु की मर्जी को पूरा किया। यीशु मसीह ने क्या किया जी? बाप की मर्जी को पूरा किया। और पौलुस रसूल ने किसकी मर्जी को पूरा किया? यीशु मसीह की मर्जी को। इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस रसूल का जो मिजाज है वो यीशु मसीह के साथ मिलता है। आगे हम यीशु अपने बाप की मर्जी को पूरा करके बाप के पास चले गए। और पौलुस रसूल भी कहते हैं जीना मेरे लिए मसीह और मरना क्या जी? पौलुस रसूल ये बात कर रहे हैं, अगर मेरा और आपका मिजाज इस तरह का होगा, अगर मैं और आप कहेंगे कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना क्या है जी, तो फिर हमारा मिजाज जो है वो यीशु के साथ, या फिर हमारा मिजाज जो है वो पौलुस रसूल के साथ मिलेगा। तब हम कह सकते हैं, तब मैं और आप भी कह सकते हैं, पाल साहब भी कह सकते हैं, आप लोग भी कह सकते हैं कि मेरी मानद बनो, क्योंकि पौलुस रसूल ये बात का दावा कर रहे हैं। और एक ईमानदार भी है, उसका भी ये दावा होना चाहिए। आमीन। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूरी रात दुआ में गुजारते थे। और हम कहते हैं कि दुआ नहीं,
होती वजह, अगर आपसे दुआ नहीं होती तो पूछे वजह क्या है, तो कहते हैं कि मुझे नींद बहुत आती है। वो दुनिया की फिक्रों में लगे हैं, जैसे आजकल के हालात हैं। लोग महंगाई की वजह से इतने परेशान हैं कि रोज कहते हैं कि ये क्या बन रहा है। दाल, चीनी, घी, आटा, इन चीजों से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो वजह क्या थी कि यीशु मसीह पूरी रात दुआ करते थे। क्या वजह थी, आप बता सकते हैं जी? पूरी रात दुआ करते। वो तो मैंने कह दिया कि वजह क्या थी कि पौलुस रसूल पूरी रात दुआ करते थे। उसको दुनिया की फिक्र थी। किसकी फिक्र थी? दुनिया की। यीशु मसीह पूरी रात दुआ करते थे। वजह क्या थी, सबब क्या था कि वो पूरी दुनिया की फिक्र कर रहे थे। मुझे और आपको जो फिक्र है मैंने आपको बता दिया है। मैंने और आपने इन फिक्रों से दूर रहना है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि इन सब चीजों की तलाश के अंदर कौन रहती है जी? गैर कौमें रहती हैं। मैंने और आपने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की फिक्र करनी है। अब मैंने और आपने सिर्फ यीशु मसीह के ताबे रहना है। तब मैं और आप पूरी रात दुआ कर सकते हैं। तब और मैं दुआ के अंदर ठहर सकते हैं अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने शोहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने खानदान के लिए। तब आप ठहर सकते हैं, तब उनके लिए फिक्र कर सकते हैं जब आप पूरी रात दुआ करेंगे। जब आप दुआ नहीं करते, जब आप दुनिया की फिक्रों के अंदर रहते हैं, दुनिया के कामों में लगे रहते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे और आपको सारी रात और घंटों के साथ हमें खुदा के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। जैसे खुदा के बंदा ने यहाँ पर बहुत बाइबल स्टडी के अंदर हमने सीखा कि हम 2 घंटे की इबादत करते हैं, तो हमने कभी नहीं कहा खुदा के खादम को कि नहीं, सब्त का दिन जो है वो सारा दिन इबादत के अंदर या दुआ के अंदर या प्रस्तुत के अंदर गुजारना चाहिए। पर हम खुदा के खादम तो कहते हैं हमें ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए, हमें ज्यादा इबादत के अंदर टाइम गुजारना चाहिए। अगर खुदा का खादम 10 मिनट 20 मिनट ऊपर लगा देता है, लोग बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका राब्ता दुनिया के साथ है, उनका राब्ता खुदा के साथ नहीं है। अगर खुदा के साथ होगा तो जैसे यीशु मसीह पूरी रात दुआ करते थे, आप भी और मैं भी जब पूरी रात दुआ करेंगे तो फिर हम जब सब्त का दिन होगा, मैं और आप खुदा के खादम को कहेंगे नहीं पाल साहब ये दिन खुदा का है, हमने सारा दिन दुआ करनी है, हमने सारा दिन इबादत करनी है, हमने सारा दिन कलाम सुनना है। क्योंकि मैं पास्टर इंकमरुल्ला की और पास्टर बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री को देखता हूँ, वो सुबह 9 से लेकर 2, 3, 4 बज जाते हैं उनकी मीटिंग के अंदर। तो हम लोग पहले तो लोग 1 घंटा लेट आते हैं, उसके बाद 1 घंटे के जब मैसेज होता है तो उसी तरह हम लोग कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं। इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग बुड़बुड़ाते हैं कुड़कुड़ाते हैं, खुदा उनको तर्क कर देता है। इसलिए अगर मैंने और आपने यीशु जैसा मिजाज रखना है, यीशु मसीह जैसा चाल चलन रखना है, यीशु मसीह जैसा काम करने हैं, तो हमें पौलुस रसूल की तरह यीशु जैसा बनना पड़ेगा, उस जैसा दुख सहने पड़ेंगे। वो बड़ी रातों के अंदर, दिनों के अंदर, वो जहाज टूटने में, बड़े दिनों के अंदर मुसीबत में रहा, तंगी काल के अंदर रहा, और ये बात को वो बयान कर रहे हैं कि मुझे मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं और आप भी यहाँ तक बढ़ जाएं कि हम भी ये कहने वाले बने कि हमें मसीह की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकता। इसलिए आज और मैंने आज और आपने सीखा है कि हमने कैसा मिजाज रखना है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था।
खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. Hallelujah.